Good morning, children. Today we are going to start chapter number 10, Lines and Angles. In this chapter, first we will learn about angles. First, angle. What is angle? A figure formed by two rays with a common initial point is called an angle. Everyone, watch carefully. If two rays or a figure formed by two rays. AO is the one ray, OB is second ray. Figure formed by two rays with a common initial point. कॉमन पॉइंट का मतलब होता है ये पॉइंट आपका इसमें भी यूज होगा और इसमें भी यूज होगा, दैट इज कॉमन पॉइंट, is called an angle. The two rays are called the arms of the angle. In this figure, AO is the first arm and OB is second arm. In this figure, angle AOB is an angle and OA OB as two arms and O as the vertex. Initial common point is called its vertex. So it is called an angle. Now, types of angles. You know very well types of angles, but we will revise the angles. First, zero angle. An angle whose magnitude is 0 degree is called a zero angle. जिस भी एंगल का मेजरमेंट 0 डिग्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जीरो एंगल. क्लियर? Number 2, acute angle. An angle whose measure is between 0 degree and 90 degree is called an acute angle. If the measurement of an angle is more than 0 and less than 90, यानी कि 0 और 90 के बीच में जो मेजर जिन एंगल्स का होता है दैट इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल. फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री, 45 डिग्री, 79 डिग्री, 89 डिग्री, 88.8 degree, they are called because they are less than 90 degrees. So they all are acute angles. Now, third part, right angle. An angle whose measure is 90 degree is called a right angle. पूरा मेजरमेंट जिसका 90 डिग्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? राइट एंगल. नाउ फोर्थ, ऑब्ट्यूस एंगल. An angle whose measure is between 90 degree and 80 degree. It means it is more than 90 and less than 180. It is called an obtuse angle. If the measure of any angle is more than 90 and less than 180 degree is called an obtuse angle. For example, 125 degree, 157 degree, 179 degree, 140 degree, they all are obtuse angle. Now number 5, straight angle. An angle whose measure is 180 degree is called a straight angle. जिसका मेजरमेंट कितना होता है? पूरा 180 डिग्री होता है. इट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल. नाउ रिफ्लेक्स एंगल. An angle whose measure is between 180 degree and 360 degree is called a reflex angle. It means if the measure of an angle is more than 180 and less than 360 degree is called reflex angle. क्या बोलते हैं बच्चों इसको? Reflex angle. Now complete angle. An angle whose measure is 360 degree is called a complete angle. यानी कि आप अगर ये देखें कि कोई एंगल स्टार्ट यहाँ से हुआ और पूरा एक उसने राउंड ले लिया, दैट मीन्स इट इज़ अ complete angle. Its measure is 360 degree.
अ कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू टू स्ट्रेट एंगल। अगर टू स्ट्रेट एंगल हमारे पास हैं तो दैट इज कॉल्ड वन कंप्लीट एंगल, क्योंकि स्ट्रेट एंगल कितने का होता है बच्चों? 180। 180 प्लस 180 कितना हो गया? 360। तो टू स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू वन कंप्लीट एंगल एंड फोर राइट एंगल्स आर इक्वल वन कंप्लीट एंगल। क्लियर एवरीवन? नाउ अब हम कुछ ऐसे एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि अभी आपने नहीं पहले कभी पढ़े हैं। इट इज पेयर ऑफ एंगल्स। फर्स्ट, adjacent angle. What is the name? Adjacent angles. Two angles are called adjacent angle if they have a common vertex, they have a common arm, and their other arm lie on opposite side of the common arm. तो बच्चों अभी तो आपको समझ नहीं आया होगा। देखिए, अगर टू एंगल्स जिसका एक कॉमन वर्टेक्स है, जैसे ये आपके पास एक एंगल मैंने आपको ये दिखाया AOC। इन दिस फिगर टू एंगल्स, कौन सा एंगल है? फर्स्ट देखिए AOB फर्स्ट एंगल एंड BOC इज द सेकेंड एंगल। दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स क्या है? इन दोनों एंगल के लिए O पॉइंट जो है वो क्या है? कॉमन है। एंड दे हैव अ कॉमन आर्म। इनके बीच में एक कॉमन आर्म होती है जो इस एंगल में भी यूज होती है और इस एंगल में भी। तो कॉमन आर्म कौन सी है बच्चों इसमें? OB। OB इज अ कॉमन आर्म। इट इज यूज इन BOC एंड AOB। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। फिर से सुनिए, टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड दे हैव अ कॉमन आर्म and their other arm lie on opposite side of the common arm। यानी कि ये जो इसकी दूसरी जो इसकी साइड है वो क्या होती है? कॉमन आर्म की अपोजिट साइड में होती है। ठीक है। नाउ लीनियर पेयर। अब ये लीनियर पेयर क्या होता है बच्चों? अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, यानी कि एडजेसेंट एंगल्स के पेयर whose known common rays are opposite to each other is known as linear pair. Suppose this is linear, suppose क्या ये सच में ही लीनियर पेयर है? देखिए AOB एंड BOC। अब एडजेसेंट क्यों है? क्योंकि इसमें एक कॉमन पॉइंट भी है, यानी कि वर्टेक्स इज कॉमन, O इज द कॉमन पॉइंट एंड OB इज अ कॉमन आर्म। लेकिन इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं, यानी कि OA अपोजिट टू OC स्ट्रेट हो रही है, ये ऐसे नहीं जा रही है या ये ऐसे नहीं जा रही है, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो रही है और दोनों मिलकर क्या बना रही हैं? स्ट्रेट एंगल बना रही हैं। तो ऐसे एडजेसेंट एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर बोलते हैं। देखिए इसमें, देखिए बच्चों फिर से, OA इज अपोजिट टू OC, तो ये कौन सा एंगल बना रही है हमारे पास? स्ट्रेट एंगल। इन दिस एडजेसेंट, ये एडजेसेंट क्यों है? बिकॉज इट्स वर्टेक्स इज कॉमन, O इज कॉमन एंड वन आर्म OB इज कॉमन। तो ये आपका देखिए एक एंगल तो ये बन रहा है AOB और एक क्या बन रहा है? BOC। तो इसका मतलब ये एडजेसेंट एंगल है, बट इट ऑल्सो मेक अ स्ट्रेट एंगल, सो इट इज कॉल्ड लीनियर पेयर। यानी कि जो एडजेसेंट एंगल स्ट्रेट की फॉर्म में आ जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर कहते हैं। द सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स आर 180 डिग्री। इनका जो सम होता है दोनों एंगल्स का क्या होता है? इसमें 180 डिग्री होता है। और इसमें बच्चों एक बात और होती है कि देखिए, इफ वन एंगल इज एक्यूट अदर एंगल विल बी ऑब्ट्यूस। ये देखिए, ये ऑब्ट्यूस है और ये वाला क्या है? एक्यूट है। अगर इसमें एक एक्यूट होता है तो दूसरा क्या होता है? ऑब्ट्यूस होता है। एडजेसेंट में ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन लीनियर में ऐसा ज़रूरी है। क्लियर? तो नाउ AOB and BOC
आर एडजेसेंट एंगल से। तो आपको पता है ओ ए opposite to OC, OA opposite to OC each other, और ये क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट एंगल। हेंस AOB and BOC are linear pair. So AOB and BOC are linear pair. Clear everyone? We observe that AOC is a straight angle. AOC यहाँ पर ले सकते हैं इसका पॉइंट। AOC is a straight angle of angle, thus the sum of angles in a linear pair is 180 डिग्री। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि एडजेसेंट एंगल्स का यदि सम 180 होता है, they are also called a linear pair. Now complementary angles. Two angles are said to be complementary if the sum of their measure is 90 degree. कोई भी दो एंगल अगर उनका सम दोनों का 90 डिग्री होता है तो ईच एंगल इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर। तो एक एंगल दूसरे का क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि वन एंगल इज 60 एंड सेकेंड इज 30, दे आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। तो व्हाट इज द सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री, then they are called complement of each other. Now supplementary angles. If two angles are said to be supplementary if the sum of their measure is 180 degree. अगर किसी भी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है then each angle is called supplementary of the other. देखिए in this angle AOB is 60 डिग्री, BOC is 120 डिग्री, is 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर भी कहेंगे इसको, लेकिन इसको क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री भी कह सकते हैं। और सप्लीमेंट्री में अलग भी हो सकते हैं ये दोनों एंगल। सपोज इट इज़ 140 एंड अदर इज 50 डिग्री, सॉरी 50 नो 40 डिग्री, इट्स सम इज 180 डिग्री, सो इट इज़ कॉल्ड सप्लीमेंट टू ईच अदर। ऐसे अगर लीनियर पेयर में है तो भी हम इनको सप्लीमेंट कह सकते हैं, और यदि ये अलग अलग भी हैं और इनका सम 180 है तो भी हम इनको क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री। तो AOB इन दिस फिगर AOB प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो लीनियर पेयर इज ऑल्सो सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर एवरीवन?